Good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the another most important topic from the chapter number 4, magnetic effect of current, class 12 physics based on NCERT. Okay, student. What is the topic name of the today? Moving coil galvanometer. Today's topic only construction of moving coil galvanometer. What is the mean of the construction? This is a total laboratory product, that means a practical thing. So just defined moving coil galvanometer. First one, what is the mean of the galvanometer? Student, galvanometer basically divide into two category. First one, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जैसा आपने देखा होगा दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है तो पहले उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ इरर्स होता है, उसको हम एडवांस करके एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर इन द प्रीवियस वर्जन मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर also known as the tangent galvanometer. Another type of galvanometer are known as moving coil galvanometer, जो आज हमको समझना है। moving coil galvanometer also divide into two category. First one suspended moving coil galvanometer and second one pivot moving coil galvanometer. Okay student, the basic explanation related to moving coil galvanometer. सर आपने तीन वर्ड के बारे में बहुत सुना होगा, फर्स्ट वन कैपिटल जी, सेकेंड वन कैपिटल ए एंड थर्ड वन कैपिटल वी। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल ए, कैपिटल वी एंड कैपिटल जी? कैपिटल जी इज अ बेसिक सिंबल who represent a galvanometer. Capital A, a basic symbol who represent a meter. V, basic symbol who represent the voltmeter. G, that means a galvanometer. A, that means a ammeter. V, that means a voltmeter. Galvanometer is a device which used to indicate the direction of flow of current. Okay student, मतलब सर अगर जो मैं घर पे वायरिंग कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसे डिवाइस का यूज करूंगा जिससे मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता चले। ओके स्टूडेंट, उस डिवाइस का नाम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बस। सेकेंड वन अमीटर। अमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर द मेजरमेंट डिवाइस। अमीटर is a device which used to determine the value of current in ampere. Voltmeter is a device which used to determine the value of current in the case of the ammeter, value of voltage in the case of the voltmeter. Okay student, basic difference between the galvanometer, ammeter and voltmeter. Galvanometer direction के लिए, ammeter just for amount of current, voltmeter amount of voltage. Okay students, so now we define the construction of moving coil galvanometer. Okay student, this is a suitable diagram who represent the moving coil galvanometer. What is the mean of this? ये जो अंदर का हिस्सा है इनसाइड ऑफ द सर्किट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन ध्यान से देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस में होता है? ये एक पर्टिकुलर वुडन बॉक्स में होता है। वुडन बॉक्स ले लीजिए, मैग्नेटिक बॉक्स ले लीजिए, सॉरी मेटलिक बॉक्स ले लीजिए, ग्लास बॉक्स ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट वन वुडन बॉक्स, बट तीन साइड से इसको आप क्या करेंगे? क्लोज रखेंगे। सिर्फ फ्रंट साइड कैसा होना चाहिए? ग्लास लगा होना चाहिए। वाई? ठीक है, रीडिंग या मेजरमेंट को हम किधर से देखने की कोशिश करते हैं? फ्रंट से। सो फ्रंट साइड कंसिस्ट द ग्लास। फर्स्ट वन, what is the mean of the first point student? That means a structure of moving coil galvanometer consists by a wooden box. Front side consists of plain glass or plain mirror. Okay student, first point. Second, बिल्कुल अंदर से बात करते हैं, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट इज द मीन ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर? यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन कोर। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज होता है? बट यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। ओके स्टूडेंट, एंड बाउंडेड विथ नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर।
ये क्या है? इंसुलेटिंग कॉपर वायर। व्हाट इज द मीन ऑफ द इंसुलेटिंग कॉपर वायर? कॉपर वायर जो रहता है वो तो क्या है? कंडक्टर। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंसुलेटिंग कॉपर वायर। दैट मीन्स अगर जो किसी भी वायर के ऊपर प्लास्टिक कोडिंग कर दिया जाए, जैसा कि आप घर में देखते हो, अरे एक करंट का वायर क्या होता है? प्लास्टिक कोडिंग होता है ताकि आपको करंट ना लगे। सेकेंड वन, अमाउंट ऑफ करंट का लॉस बिल्कुल जीरो हो। ओके स्टूडेंट, जितना भी करंट हम फ्लो कर रहे हैं वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उतने ही अमाउंट में ट्रांसफर हो। अगर जो वो ओपन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सरफेस, सो अमाउंट ऑफ करंट विल बी डिक्रीज। सोच लीजिए, धीरे धीरे बात करते हैं। फर्स्ट वन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्ट्रक्चर by use of the wooden box, front side consist the simple plain mirror or simple glass. First one, okay student. Second one, at the center consist the soft iron core. कैसा शेप होता है? रेक्टेंगुलर शेप। ओके स्टूडेंट, दिस डायग्राम इज द 2D बट दैट इज द रियली 3D। हम जो लैब में बात कर रहे हैं वो कैसा है? 3D। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक क्यूब का शेप देख लीजिए। द शेप ऑफ द क्यूब defined by the soft iron core. Okay student, soft iron core at the center of moving coil galvanometer which directly bounded with the number of insulating copper wire in a particular manner. ओके स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी मोटर को बोलते हैं मोटर फ्यूज हो गई तो उस पर हम वापस से कोटिंग करवाते हैं। दैट मीन्स आप वायर को यूज करते हैं। तो जो वायर हम वहां पर अरेंज करते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। सो स्टूडेंट, सॉफ्ट आयरन कोर कंसिस्ट द नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर इन अ पर्टिकुलर मैनर। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ number of insulating copper wire, that means a coil. Okay student, first one structure, second one soft iron core, third one number of turn, that means a coil. अब इसके जब भी हम किसी भी वायर को किसी के ऊपर क्या करेंगे स्टूडेंट? लपटेंगे, मतलब वन बाय वन अरेंज करेंगे तो उसके कितने एंड होंगे? 2 एंड। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड। फर्स्ट एंड कंसिस्ट बाय अ फॉस्फोरस वायर। ये जो वायर है ये काय का होता है स्टूडेंट? फॉस्फोरस। वाई? सर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक वायर को लेंगे और उसको लगातार रोटेट करेंगे, ओके स्टूडेंट, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट इस मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये इतना इजी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा। पर्पस आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। यहाँ पर ये जो वायर है इसमें हमने क्या यूज करा है? कॉनकेव मिरर। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कॉनकेव मिरर? समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा सर? आपको डिफ्लेक्शन ऐसा दिखेगा। तो आप उसको कैसे देखने की कोशिश करेंगे? तो आपने उसके ऊपर एक मिरर लगा दिया। मिरर क्रिएट द इमेज ऑफ रीडिंग, यस और नो? मिरर पे आपको जितना भी डिफ्लेक्शन होगा वो शो होगा। सो बाय यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर यू गेटिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स। फर्स्ट वन स्टूडेंट, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बोला है? ये पूरा का पूरा कैसा है? वुडन बॉक्स में असेंबल है। सेकेंड वन, ठीक है, फ्रंट साइड कंसिस्ट द प्लेन मिरर। थर्ड वन, सॉफ्ट आयरन कोर। फोर्थ वन, number of turn by the insulating copper wire which known as the coil. ठीक है, 2 ends connect with the concave mirror and another wave connect with the hair spring. What is the mean of the hair spring? सिंपल सा सर, एक ऐसा स्प्रिंग लिया है, ऐसा स्प्रिंग जिसका वेट, जिसका मास, जिसकी डेंसिटी सब कुछ मिनिमम है। सब कुछ मिनिमम मतलब ये जो स्प्रिंग है ये बेंड होगी, बट अगर जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिल जाए तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। मतलब गैल्वेनोमीटर कैसा हो जाएगा सर? ये टूट सकता है। हेयर स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट एंड कनेक्ट विद द कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड एंड कनेक्ट विद द हेयर स्प्रिंग एंड बोथ एंड कनेक्ट विद द टर्मिनल T1 and T2. Let me consider this is a first terminal T1 and this is a second terminal T2. What is the mean of the terminal student? आज ये भी समझा लेते हैं। जैसा कि आपने घर में जब भी आप प्लग का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी आपने वायरिंग में
ठीक है, कनेक्शन लिया तो वहां पर 2 पिन कनेक्शन होता है, 3 पिन कनेक्शन होता है, 4 पिन कनेक्शन होता है, यस और नो? 2 पिन कनेक्शन, दैट मीन्स अ फेज एंड अर्थिंग। ओके स्टूडेंट, एंड दिस connection, these points are known as the terminals. So here we consist our two terminal T1 and T2. T1 and T2 directly connect with any external source. Due to flow of current, we getting the deflection by use of the pivot. What is the mean of the pivot? ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट आप अभी इतना समझिए, यहाँ पर T1 एंड T2 क्या है? बोथ आर द टू टर्मिनल्स which directly assemble with the any external source. Due to flow of current, we getting the some time of the deflection which known as reading. Okay student, और ये क्या है सर? ये है नॉर्थ एंड साउथ पावरफुल हॉर्स मैग्नेट इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। अगर जो मैं इसके 2 पार्ट्स कर दूं तो ये मुझे ऐसा देखेगा, फर्स्ट वन नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन साउथ पोल। यू नो दैट वेरी वेल the property of magnetic lines always passing north to south, outside of magnet, inside south to north. Okay student, ठीक है, this is a basic structure of moving coil galvanometer. This is a basic structure. Now something different from second, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सामने से मैंने आपको दिखाया है 2D शेप, ठीक है, थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट मींस अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके स्टूडेंट, फॉर वी कंसीडर, लेट अस कंसीडर दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। ओके, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कोलाइड विद दिस स्केल, सम फ्रॉम दिस एंड सम फ्रॉम दिस एंड। सो ड्यू टू, इधर से जो आएगी इनकी डायरेक्शन कैसी है? साउथ टू नॉर्थ, और इधर से जो मैग्नेटिक लाइन जाएगी इनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। दैट मीन्स अ रेडिकल पाथ। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेडिकल स्टूडेंट? जस्ट लुक आउट, this is a diagram who define the radical magnetic lines when magnetic lines passing from north to south, then south to north. You know that very well. By the property of magnetic lines always consist in the form of complete closed curve. Okay student, मतलब कहीं ना कहीं ये कर्व प्लॉट करेगा, तो नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। सो नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, देन साउथ टू नॉर्थ, तो ये क्या होने लग जाएगा? रोटेशन कंप्लीट करेगा। हु विल बी रोटेट? कॉइल विल बी रोटेट ड्यू टू radical magnetic lines. Okay student, what is the purpose of powerful horse magnet in a form of cylindrical? Just for create a radical concept. Okay student, ठीक है, second one diagram just for the radical concept. Now this, what is the purpose of this diagram? ध्यान से देखिए student, let we consider ABCD is a single coil. यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? नंबर ऑफ कॉइल्स। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल कॉइल ले रहा हूँ। ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ एज अ रेडिकल। तो इसका याला फेस, अगर जो इनसाइड यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा? इनसाइड, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा? आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड, देन रोटेशन विल बी स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो जब both forces are equal but opposite to each other, this type of situation are known as the torque. Okay student, ठीक है, explanation of first diagram, purpose of second diagram, explanation of third diagram, purpose of fourth diagram. Student, this diagram used to determine the derivation. Torque will be equal of M into B. What is the mean of the M? M that means a magnetic moment and B that means the intensity of magnetic field. ध्यान से देखिए, the explanation of last diagram will be start. Student, so first one, rectangular coil. Okay student, rectangular coil consists the two end P1 and P2. P1 that means a pivot. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द पिवोट? समझिए,
ठीक है, जैसा कि आपने स्पीडोमीटर में देखा होगा, अपनी बाइक में देखा होगा, ठीक है, एक इनिशियल, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड स्पीड और वेलोसिटी विल बी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 180 280, डिपेंड करता है आपके पास जो भी बाइक है, बट इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 0. ओके स्टूडेंट, हियर in the case of the galvanometer, ammeter and voltmeter, initial value will be equal of 0, same, but 0 कहाँ पर होता है स्टूडेंट? at a mid, at a center. Okay स्टूडेंट, ठीक है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन. इन द केस ऑफ द स्पीडोमीटर ऑलवेज 0 to 180, but in the case of the galvanometer, ammeter, voltmeter, 0 at a center, positive deflection and negative deflection. To note of the reading we used a, इसको क्या बोले, ये जो हैंडल है इसको हम क्या बोलते हैं? इन द केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, पिवोट. ओके स्टूडेंट, लेट मी कंसीडर P1 इज अ पिवोट एंड this is a circular scale of galvanometer. Circular scale of galvanometer, so it is known as galvanometer scale. Okay student, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ 0 डिग्री, देन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री. पॉजिटिव 90 डिग्री, नेगेटिव 90 डिग्री, और आप इसको नेगेटिव बोले तो आप इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है, बोथ डायग्राम्स आर सिमिलर, but this is a level diagram and this is a circuit diagram of galvanometer. Okay student, just look out, ring spring S1 directly connected with the terminal T1 and spring S2 directly connected with the terminal T2. Okay student, terminal T1 and terminal T2 just used for inputs. Okay student, now we define the real galvanometer. Student, this is a real example of galvanometer, that means a DC moving coil galvanometer. First one, galvanometer basically divide into two category: moving coil galvanometer basis on the DC, basis on the AC. Okay student, red represent the positive terminal and black represent the negative terminal. always red, मतलब किसी भी सर्किट में होगा तो रेड दैट मीन्स अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक दैट मीन्स अ नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव दैट मीन्स अ अर्थिंग एंड पॉजिटिव दैट मीन्स अ फेस. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फ्रंट ऑफ गैल्वेनोमीटर. Consider the plain glass. Okay student, a simple red handle are known as pivot. ये जो आप red handle देख रहा है स्टूडेंट, ठीक है, this is a pivot and initial value will be equal of 0. आप बोलेंगे सर, ठीक है, विदाउट एनी कनेक्शन डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल ऑफ 20 डिग्री, तो हम बोलेंगे दिस इज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर. ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 11th, इंस्ट्रूमेंटल एरर विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव 20 डिग्री और नेगेटिव 20 डिग्री. नाउ pivot consist by the center and this is a circular scale of galvanometer. Initial value will be equal of 0 degree. Left side we taking the negative values, right side we taking the positive value, that means a minus 10 degree, minus 20 degree, minus 30 degree. Here positive 10 degree, positive 20 degree and positive 30 degree. Okay student, the least count of galvanometer depends on number of parts. Okay student, this is a simple explanation related to real galvanometer. I hope student you getting the proper solution related to construction of moving coil galvanometer. This is a moving coil galvanometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajota. क्या करेंगे? Like my video, share between the friends, subscribe channel and also study from our channel. Thank you so much.